Hello, imbibers. A very good afternoon to all of you children. Welcome to today's session again with the another session. And today's session, we're going to basically discuss about the very basically, I would say a kind of a condition which is very much regularly seen in our daily life. We have seen people suffering from such conditions. We have feel that people have lost their life because of such conditions. So yes, we're going to basically discuss about the cardiac arrest versus the heart attack. So there are two different things. There's a cardiac arrest and there is a heart attack. So yes, we're going to basically discuss what is the difference between the cardiac arrest and the heart attack in detail. And before we start, let me introduce you to myself once again. I am Anam Khan. I'll be your biology expert, and we're going to discuss all the amazing and interesting topics related to biology. And soon we're going to start your sessions on the Imbibe app. So जाके Imbibe को download कर लो. Go to your respective class and see your particular class. Register for the upcoming session. Next वीक मैंने तुम्हारे पूरे 7th और 8th स्टैंडर्ड के सेशंस लगाए हुए हैं. सो प्लीज गो एंड रजिस्टर फॉर देम एंड डू जॉइन अस फॉर द लाइव सेशंस बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव. लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन, लॉट्स ऑफ academic session in detail we have been discussing over there. So please do meet me on the Imbibe app and please keep registering for the upcoming session. So let's start our today's session, which is the difference between the cardiac arrest versus the heart attack. Before we start, a quick introduction about myself, about your educator, and which is me. Of course, my name is Anam Khan. I have an experience of 7+ years, mentored more than 12,000 aspirants. My qualification is MSc Plant Sciences and specialist in biology, botany. So this is a quick introduction about myself, which at least you should know that I am being your educator. Moving forward, next we have cardiac arrest. So just let's discuss about what is a cardiac arrest, children. If I talk about the cardiac arrest, when a person's heart stop circulating blood through their body and they stop breathing regularly, it is known as cardiac arrest. So what do you basically mean by cardiac arrest? सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी का हार्ट रुक जाए और वो बेसिकली बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना बंद कर दे एंड दे स्टॉप ब्रीदिंग, रेगुलर पैटर्न में ब्रीद करना भी बंद कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. मतलब योर हार्ट स्टॉप्स पंपिंग द ब्लड and because of that your breathing also stops. When these two particular process happen simultaneously, this leads to cardiac arrest. And this is what you call as cardiac arrest, when a person's heart stop circulating blood throughout the body and they stop breathing regularly. So this is what the cardiac arrest is. As we move forward discussing more about what is the difference between a cardiac and heart attack, let's see what we have next. What causes the cardiac arrest? So children, काफी सारी reasons हैं in general which causes the cardiac arrest. So let's discuss about those reasons. What causes exactly the cardiac arrest? If I talk about, the very first reason is the arrhythmia, enlarged heart, coronary artery diseases. So there are 3 reasons of the cardiac arrest: arrhythmia, enlarged heart, coronary artery diseases. Okay, when I talk about the arrhythmia, what is a kind of a condition which causes the cardiac arrest? A heart arrhythmia is an irregular heartbeat which occurs when the electrical signals that coordinate with the heart's beat does not work properly. So what is arrhythmia? Children, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जानते हो ना तुम लोग, नर्वस सिस्टम में तुम्हारे एक दूसरे के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह ही सिग्नल्स पहुंचते हैं. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्टबीट के साथ सिंक होते हैं. जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्टबीट के साथ कोऑर्डिनेट ही ना करें एंड दे हैव अ इरेगुलर हार्टबीट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स because they do not have a kind of a syncing pattern, and due to something is not functioning properly, this is a faulty signal, causes heart beat too fast and too slow irregularly. तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्लीटली सही तरीके से सिंक नहीं होते हैं हार्ट बीट के साथ, तो हार्ट के साथ क्या होता है, या तो वो बहुत तेज से बीट करना शुरू कर देता है या वो बहुत स्लो बीट करना शुरू करता है. देयर इज गोइंग टू बी इरेगुलर पैटर्न इन द बीटिंग ऑफ द हार्ट विच बेसिकली रिजल्ट्स टू द कंडीशन कॉल्ड अराइथीमा. ओके, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और हार्ट बीट तुम्हारी सिंक ना हो, उस केस में क्या होता है, अराइथीमा होता है. हार्ट बीट इज नॉट
basically in a not beating in a regular fashion. It's either it's too high or too low. Yes, clear? That's the irregular pattern of the heartbeat. Next we have enlarged heart. When we talk about the enlarged heart, the heart muscles dilates or thickens, leading to abnormal contractions of the heart. Yes, what is an enlarged heart? ये भी एक condition है. जब हार्ट में मसल्स होती है, तुम लोग को पता है हार्ट इज मस्क्यूलर. हार्ट कैसा है? मस्क्यूलर है. और जब ये हार्ट मस्क्यूलर होता है, जब हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाएं और थोड़ी मोटी हो जाएं, दिस लीड्स टू एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट. इनकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होने लगता है हार्ट में. जब हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट करती हैं, थोड़ी थिक हो जाती हैं, तो इस वजह से क्या होता है? दे गोइंग टू बी एन एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनलार्ज्ड हार्ट. क्लियर? यस? Okay. Next we have coronary artery disease. So what is a coronary artery disease? It develops when plaque build up in the coronary arteries, causing them to thicken and narrow, which reduce blood flow of the heart. Coronary artery disease can cause heart to failure or arrhythmias, both are which result to cardiac arrest if left untreated. What is the coronary arteries? प्लेग जो है वो आर्टरीज में जो है वो बिल्डअप हो जाता है. प्लेग समझते हो? कुछ ऐसा थिक सब्सटेंसेस जो तुम्हारी आर्टरीज में जमा होने लगते हैं, उनकी वजह से आर्टरीज की जो थिकनेस है वो कम होने लगती है. और जब आर्टरीज की थिकनेस कम होने लगती है तो आर्टरीज कैसी हो जाती है? नैरो. तो जब नैरो हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो उनमें क्या होगा? ब्लड भी जो है वो बहुत धीरे से फ्लो करेगा. ब्लड फ्लो ऑल्सो रिड्यूसेस, उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी रिड्यूस होता है. सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड योर एराइथीमा दोनों की वजह से फेलियर ऑफ द हार्ट होता है अगर ये टाइमली ट्रीट नहीं किए गए. इन दोनों की वजह से अ पर्सन कुड बेसिकली इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. क्योंकि भाई बेसिकली क्या है, इसकी एराइथीमा और कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज, इनकी वजह से, दोनों की वजह से बेसिकली हार्ट का फेलियर होना के काफ़ी सारे चांसेस हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिकली क्या करें, इनको टाइमली ट्रीट करें. क्लियर? यस. So these are the causes of cardiac arrest. One is the arrhythmia, the other is the enlarged heart, the other is the coronary artery disease. Clear? This is about the causes of cardiac arrest. Clear? Yes? I hope this is clear to you. Next, फैक्टर्स दैट इंक्रीज कार्डियक अरेस्ट. क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है? फैक्टर दैट इंक्रीजेस कार्डियक अरेस्ट मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे ना डे टू डे लाइफ में जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता होगा. वन इज द ओवर यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल. कार्डियक अरेस्ट और हार्ट इलनेस इन द फैमिली. अगर घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट इलनेस की प्रॉब्लम है, देयर इज गोइंग टू बी अ हार्ट कंडीशन. अगर कोई हार्ट कंडीशन हो गई, बेसिकली अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तब भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल है किसी की बॉडी में तब भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तब भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. और स्मोकिंग का इशू है तब भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. तो ड्रग्स एंड अल्कोहल तो तुम लोगों को पता है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस को पैदा कर सकते हैं, कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, बट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट. अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, फैमिली में भी तुम्हारी कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम चलती है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट. हार्ट की कंडीशन कैसी है? हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो लीड्स टू द कार्डियक अरेस्ट. हाई कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो लीड्स टू द कार्डियक अरेस्ट. ओबेसिटी, स्मोकिंग, इन सब से भी तुम्हारा क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. सो ये फैक्टर्स हैं इंक्रीज्ड which increases the chances of the cardiac arrest. Clear?
देख लो ध्यान से। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। Next we have prevention. So what is prevention, children? How we can always, prevention is always better than cure. Yes, so how do we prevent it? We can prevent it by consuming heart healthy food. एकदम अच्छा हेल्दी खाना खाना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सरसाइजिंग फॉर वेट लॉस, अगर हम लोग को वेट गेन हो गया, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैट हो रहा है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ड्रग्स और स्मोकिंग अगर करते हैं तो गिव अप करना पड़ेगा। लिमिटिंग एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल कंजम्पशन अगर कोई करता है तो उसको क्या करना है, लिमिटेड करना है। सो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। अच्छा हेल्दी खाना, रेगुलर बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना, ड्रग्स और स्मोकिंग को छोड़ देना, और लिमिटिंग एल्कोहल कंजम्पशन। एल्कोहल का कंजम्पशन अगर करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड कर दें, और स्पेशली हो सके तो अपनी बॉडी के लिए वो छोड़ ही दें। सो दीज आर द प्रिवेंशंस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हार्ट अटैक। अब तक कार्डियक अरेस्ट की बात करी थी, अब बात करते हैं व्हाट इज heart attack. If I talk about heart attack, then heart attack is also called myocardial infarction. Happens when a part of the heart muscles does not get enough blood. क्या डिफरेंस है हार्ट अटैक में और कार्डियक मसल्स में, कार्डियक अरेस्ट में? हार्ट अटैक में अगर हार्ट के किसी भी पार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उस टाइम हो जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या हो जाता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मतलब तुम्हारे हार्ट की किसी मसल्स को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है एंड यू आर फीलिंग लॉट ऑफ पेन इन योर चेस्ट which can lead up to a heart attack. Okay, which can lead to heart attack. Okay, heart attack is also called myocardial infarction. In this, the part of your heart does not get enough blood. Next we have causes of heart attack. As you can see, children, coronary artery disease, coronary heart disease is a leading cause of heart attack. देख रहे हो, arteriosclerosis is a build of fat. ये देख रहे हो फैटी लेयर जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स में इकट्ठी होती है, इसकी वजह से भी क्या होता है, स्पेशली फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन एंड ऑन आर्टरी वॉल, दिस बिल्डअप कॉल्ड प्लेग। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेग। ये तुम्हारी आर्टरीज में जब बिल्डअप होने लगता है तो देख रहे हो ये ब्लड फ्लो का क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है, द प्लेग कैन कॉज आर्टरीज टू नैरो, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। द प्लेग कैन ऑल्सो बर्स्ट लीडिंग टू अ ब्लड क्लॉट। सो चिल्ड्रन, ये प्लेग जो है अगर आर्टरीज में इकट्ठा होने लगता है तो ये आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और ये प्लेग जो है वो कैन कॉज टू द बर्स्टिंग एंड लीडिंग ऑफ द ब्लड clot. So these are the causes of the heart attack. If you ध्यान से पढ़ो, first point is coronary heart disease is the leading cause of heart attack. Next, arteriosclerosis. आर्थियोस्क्लेरोसिस क्या है? जब तुम्हारे आर्टरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और उस बिल्डअप को हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। इस प्लेग की वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जो ब्लॉक कर देती हैं तुम्हारा ब्लड फ्लो और बेसिकली कॉज कर देती हैं क्लॉटिंग। ठीक है, और वहां पर थोड़ा सा ब्लड क्लॉट आ जाता है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक। क्लियर? Next, factor that increases heart attack. There is a high blood pressure, high blood cholesterol, smoking, obesity, stress या drugs। भाई हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट हो,
दोनों के भाई फैक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बिकॉज हार्ट डिजीजेज ही हैं दोनों की दोनों, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, गुस्सा बहुत आता है, उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हमेशा एंग्शियस रहते हैं, ठीक है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी ज्यादा है। दूसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ओबीज हैं, बॉडी में क्या है फैट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं, और ड्रग्स का यूज करते हैं। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंक्रीज करते हैं रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट, हाउ डू वी प्रिवेंट इट? चिल्ड्रन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम कैसे से प्रिवेंट करेंगे? हम मेंटेन करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल, हम स्मोक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। हार्ट हेल्दी डाइट खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा हरा भरा खाना खाएंगे, कम तेल का भुना हुआ तला हुआ इस तरह की चीज़ें अवॉइड करेंगे, जंक अवॉइड करेंगे, अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? मैनेज करेंगे स्ट्रेस, और रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। इन सारी चीज़ों से क्या होगा तुम्हारा? सारी चीज़ों से तुम्हारा क्या होगा? बेसिकली प्रिवेंशन होगा। क्लियर? दिस विल ऑल लीड टू दी प्रिवेंशन इन योर body for the and they'll reduce the risk of a heart attack in the body. Yes, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे preventions हैं. Clear? Next, now finally, what is the difference between a heart attack and a cardiac arrest? ध्यान से देखो, cause, warning signs, results in heart attack, cardiac arrest. कॉज क्या है हार्ट अटैक का? ब्लॉक्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। कार्डियक अरेस्ट का है एबनॉर्मल हार्ट रिदम। अगर एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी तब कार्डियक अरेस्ट होगा, अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अटैक होगा। वार्निंग साइंस क्या है? चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया एंड स्वेटिंग। ये सारे क्या हैं? वार्निंग साइंस है हार्ट अटैक के। अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, नोजिया एंड स्वेटिंग। कार्डियक अरेस्ट के कोई वार्निंग साइंस नहीं है, कार्डियक अरेस्ट के कोई वार्निंग साइंस नहीं है। हार्ट अटैक किस तरह से रिजल्ट करता है? हार्ट में कॉज कंटिन्यू बीटिंग बट मसल्स में स्लोली डाई फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन। हार्ट अटैक में हार्ट बीट कर रहा होता है बट जो हार्ट की मसल्स हैं वो स्लोली काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि उनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं होता है। हार्ट रिदम इज इंटरप्टेड, स्टॉप्स पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी एंड बिकम अनकॉन्शियस। हार्ट रिदम क्या है? इज इंटरप्टेड, ठीक है, स्टॉप्स पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी एंड बिकम्स अनकॉन्शियस। जो है हार्ट रिदम जो है बेसिकली इज इंटरप्टेड, प्रॉपर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस नहीं हो रहे हैं, पंपिंग अराउंड द ब्लड हैज बीन basically not regular and the person becomes unconscious. So this is the basic difference between heart attack and the cardiac arrest. Clear? I hope now you understand what is the difference between cardiac arrest and heart attack, what are the preventive measures, what is the cure, what are the reasons. आज हमने properly discuss कर लिया the difference between heart attack and cardiac arrest. Let's see what we have next. Okay, we have a MBI feature. Of course, every time I tell you about the MBI features, every day I tell you how amazing the MBI platform is. Yes, talking about the MBI feature, there is an MBI Lens app, there is interactive Kobo lessons, there is MBI practice test, there is an Achieve journey, there is a parent app, there is MBI live classes, which is basically सारे के सारे तुम्हारे 7th 8th के classes next week के schedule हो गए हैं, तो please जाके देख लो। एम्बाइब की डाउट रेजोल्यूशन है, एम्बाइब लर्न है, तो लेंस ऐप है, इंटरैक्टिव कोबो लेसन्स है, एम्बाइब प्रैक्टिस टेस्ट है, अचीव जर्नी है, पेरेंट ऐप, एम्बाइब लाइव क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन एंड एम्बाइब लर्न। ये सारे के सारी चीजें बेसिकली तुम्हारी किस पे प्रेजेंट है? एम्बाइब पर, ठीक है। प्लीज गो एंड एक्सप्लोर एम्बाइब चिल्ड्रन, इट्स लाइक द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू विल फाइंड इट एट दी, स्पेशली दिस अचीव जर्नी। प्लीज एक बार अपना एक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट लेके देखो, और ये बेसिकली तुम्हारा नॉलेज ग्रैप को और तुम्हारे प्रिडिक्ट करेगा इम्प्रूवमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग पेस। नेक्स्ट, दिस इज द 9th 10th टेलीग्राम चैनल का बारकोड,
जो भी 9th-10th वाले देख रहे हैं वो ये बार कोड स्कैन कर लें और ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, और कोई भी उनके कंसर्न्स है वहाँ पे शेयर करें, ठीक है। इट विल रीच टू अस एंड विल बेसिकली वर्क ऑन दैट, ठीक है। और सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वी हैव ये 6 to 8 वालों का टेलीग्राम चैनल है, ये बार कोड उनके लिए है। क्या करना है तुम लोगों को, ये बार कोड स्कैन करना है और 6 to 8 वालों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। ये एम्बाइब ऐप है जिसे आप ऐप स्टोर या गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन अचीविंग योर examination goals, or not just your goals. You're going to basically focus on your overall development regarding because they understand the needs of every particular child is different. So yes, that's all for today. I hope you join us for the Imbibe classes Monday to Friday. The timings are there. I think these days happening at 1 p.m. and 2 p.m. You can check it out. Later on, we're going to basically form a proper batch and we're going to have your lots of academic session. Until then, please take care. Keep imbibing. Bye-bye. Keep imbibing. We believe in you.